Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. In previous lecture, yes, this lesson number 8, cell biology and biotechnology started. In that, we have seen what is the cytology and about the stem cells. And depending on the source, the stem cells are classified into the two groups: embryonic stem cells and adult stem cells. Embryonic stem cells, we have seen the cells which are obtained from the mass of the embryo called embryonic stem cell, and this is before 14 days of the conceptions, means it is obtained from that mass which is of the 4 to 7 days and before the 14 days. So that cells called stem cells, and after the 14 days, yes, the differentiation is start. That's why, yes, the stem cells collected before the 14 days. Next, stem cells which are present in adult person, so they are present in the red bone marrow, they are present in the adipose connective tissues, and they are yes, present in the, yes, some other regions of the body of the human being. Then we have seen the uses of the stem cell. In that, we have seen the regenerative therapy. Under that, in the regenerative theory, the cell theory, in the cell theory, stem cells are used to replace the dead cells in case of the conditions like diabetes, myocardial infarctions, Alzheimer's diseases, and Parkinson diseases. And B part to produce the blood cells required in conditions like anemia, thalassemia, leukemia, etc. Second, organ transplantation. In case of the failure of organs like kidney and liver, these can be produced with the help of stem cells and transplanted. So using this therapy, the cells can be, yes, made and then it is transplanted. उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, yes, required person को हम लोग ये organs transplant कर सकते हैं. Now observe the figure 8.2, stem cells and organs. Stem cells and organ. So in this diagram, from the stem cells which organs are generated are shown here. तो ये stem cells से कौन कौन से cells generate होते हैं, कौन कौन से organs generate होते हैं, वो इस फिगर में शो किया है. Now see, from the stem cell, the neuron cells are generated and from them, yes, brains are developed. Now from the stem cell, the intestine is developed, and from this stem cells livers develop, and this stem cell the heart develop, and yes, bone is developed. Organ transplantation. Now what is the organ transplantation? If any person's organs like kidney is damaged because of infection, so then that kidney can be removed from the, yes, that person, and then the healthy kidney from the healthy person can be set in place of the damaged one. So this is called as the organ transplant. इसी को हम क्या बोलते हैं, organ transplant. Now yes, which organ can be transplanted? Yes, skin. Our skin can be transplanted. Heart can be transplanted, but it is very complicated. And the liver, kidneys, etc. are the organ which are transplanted. Various organs in the human body either becomes less efficient or completely functionless. अब कुछ क्या है, ये organ क्या होते हैं, हमारे functionless हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और become less efficient, और या तो yes properly work नहीं करते ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक एजिंग. अब ये डिसफंक्शनिंग और फंक्शनलेस हो जाते बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रॉब्लम, एज बढ़ने के साथ में, और एक्सीडेंट होने की वजह से, और इन्फेक्शंस एंड डिसऑर्डर्स, या तो उसमें डिसऑर्डर क्रिएट होने की वजह से.
लाइफ ऑफ सच पर्सन्स बिकम डिफिकल्ट और इवन फर्टिलिटी में ऑकर अंडर सच कंडीशन। तो उस पर्सन की जो लाइफ होती है वो थ्रेटेंड हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है। However, if person get the necessary organ under such condition, its life can be saved. बट अगर किसी पर्सन को जिसका इस तरह का ऑर्गेन डैमेज हो गया है, लेस इफिशियंट हो गया, मीन्स इट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर उस पर्सन को ये ऑर्गेन जो डैमेज हो गए वो ऑर्गेन हेल्दी ऑर्गेन्स अगर मिल जाए तो उसकी लाइफ बचाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर इज इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन। तो जो डोनर है, जैसे किसी की आई है, आई का प्रॉब्लम है, तो जब कोई आई डोनर अवेलेबल रहेगा तो उसको वो आई मिलेगी। या किडनी है, तो अगर कोई किडनी डोनर अवेलेबल रहेगा तो उसको वो किडनी मिलेगी। तो इन दिस वे यस द फाइंडिंग द डोनर of the yes organ is difficult task. Each person has the pair of kidney. हर एक पर्सन के पास क्या है? yes pair of kidney मतलब दो किडनीज है। As the process of excretion can occur with the help of the single kidney, as the process of excretion can occur with the help of single kidney, और जो process of excretion है वो single kidney से भी complete हो सकता है। Similarly, skin from the certain parts of the body can also be donated. इसी तरीके से हम लोग स्किन जो हमारे क्या है ये सर्टन पार्ट्स ऑफ बॉडी से क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ऐसे पार्ट से जहाँ से क्या है ये जो पार्ट्स हमारा हमेशा क्या रहता है? क्लोथ से ढका रहता है, जो क्या है ये एक्सपोज नहीं होता है, लोगों को दिखाई नहीं देता। तो ऐसे पार्ट से जो स्किन है वो स्किन हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्वायर्ड पर्सन को डोनेट कर सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप्स, डिजीज, डिसऑर्डर, एज etc. of the donor and recipient need to be paid attention during the transplantation. Now yes, during the transplantation only donor's availability is not required. Yes, the factors like age of the donor as well as recipient, the blood group of the donor and recipient, all these factors are also taken into the account. However, other organs cannot be donated during the lifetime. इसके अलावा जो है अदर ऑर्गन कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम तक दूसरे ऑर्गन को हम डोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है उसके लिए भी ये क्या है? टाइम लिमिट है कि उस टाइम के ही पीरियड में जो ऑर्गन हम दूसरे को डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं और वो दूसरे के काम आ सकता है। ऑर्गन्स, some organs are there which cannot be donated in any part of our life span। हमारी पूरी लाइफ स्पेन में ऐसे भी ऑर्गन्स है जिसको कभी भी डोनेट नहीं कर सकते। सच ऑर्गन्स आर, वो ऑर्गन क्या क्या है? सच ऑर्गन्स आर liver, heart, because liver and heart they are present yes one means singly in the human being, that's why they cannot be donated. Eyes can be donated after death only, and जो आई का डोनेशन only and only क्या डेथ के बाद कर सकते हैं। दिस हैज लेड टू द emergency of the concept like posthumous after death donation of the body and organ। इसकी वजह से क्या है, इस तरह का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में आया कि हम लोग क्या है, ये आफ्टर द डेथ ऑर्गन को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वी कैन डोनेट ऑर्गन एंड द बॉडी डोनेशन। अभी ऑर्गन डोनेशन एज वेल एज बॉडी डोनेशन। अब व्हाट इज मीन बाय द बॉडी डोनेशन? नाउ फुल बॉडी कैन बी डोनेटेड। अब फुल बॉडी कैन बी डोनेटेड फॉर द एक्सपेरिमेंट। ओके, उसको क्या है, इस मेडिकल फील्ड में एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिजीज़ है, अब वो कोई डिजीज़ है तो ह्यूमन बीइंग के किस ऑर्गन में क्या करती है, ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसकी स्टडी के लिए हम अपने बॉडी को भी क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर डेथ एज पर ट्रेडिशनल कंडीशन। अब जो हमारी बॉडी जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं जो हमारे रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग।
However, due to progress in the science, लेकिन साइंस में प्रोग्रेस की वजह से इट हैज़ बीन रियलाइज, ऐसा रियलाइज किया गया, ऐसा फील किया गया दैट मेनी ऑर्गन रिमेन फंक्शनल फॉर सर्टन पीरियड इवन आफ्टर द डेथ। तो ये साइंस की वजह से क्या हम लोगों को समझ में आया कि सम ऑर्गन इन आवर बॉडी दे रिमेन एक्टिव आफ्टर द डेथ फॉर सर्टन पीरियड, कुछ टाइम के लिए जो है डेथ होने के बाद में भी वो सर्टन ऑर्गन एक्टिव रहते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया। Under specific condition, concepts like organ donation and body donation has emerged recently after realizing that such organ can be used to save the life of other needful person। तो ये कॉन्सेप्ट बॉडी डोनेशन एज वेल एज ऑर्गन डोनेशन का ये रियलाइज होने के बाद आया कि यस, बाय डोनेटिंग द ऑर्गन आफ्टर द डेथ दस मैनी लाइफ्स कैन बी सेव्ड, कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, उनको नई लाइफ दी जा सकती है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट सोसाइटी में क्या है, ये ट्रेंड में आ गया कि ये हम लोग क्या है बॉडी एज वेल एज ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और जो नीडफुल पर्सन है वो उसके काम आ सकता है। मीन्स कि अगर हम लोगों ने क्या किया, आई डोनेट किया, तो अपने डेथ के बाद में भी हमारी आंखें क्या है इस वर्ल्ड को देखती रहेंगी। ए लिबरल व्यू behind the concept of organ and body donation is that after that our body should be useful to other needful person। अब इसके पीछे जो इस कॉन्सेप्ट है कि हमारे डेथ के बाद में भी ज़रूरतमंद पर्सन के वो ऑर्गन हमारे काम आ सके, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। मिजरेबल लाइफ वुड बिकम कंफर्टेबल, और जिन लोगों का लाइफ मिजरेबल है, ये प्रॉब्लम में है, दुख में है, वैसे लोगों की लाइफ को क्या कर सके हम लोग इजी बना सके, आसान बना सके, कंफर्टेबल बना सके, इसलिए ऐसा इस कॉन्सेप्ट सोसाइटी में इस ट्रेंड में है। अवेयरनेस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग इन आवर द अवेयरनेस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, अबाउट द कॉन्सेप्ट इज इंक्रीजिंग, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है डोनेशन ऑफ ऑर्गन, डोनेशन ऑफ बॉडी, अब ये डे टू डे इंक्रीज हो रहा है इन आवर कंट्री। एंड पीपल आर वॉलेंट्री डोनेटिंग देयर बॉडीज, और पीपल जो है, लोग जो है वॉलेंट्री खुद से अपनी विश के हिसाब से क्या कर रहे हैं, उस बॉडी के डोनेशन के लिए इस रजिस्ट्रेशन कराते खुद का। लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी सेव्ड बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। अब अगर हम ऑर्गन डोनेट करें या बॉडी पूरी डोनेट कर दे तो ऐसे हम लोग कई लोगों को लाइफ दे सकते हैं। ब्लाइंड कैन रिगेन द विजन, जो ब्लाइंड है, जो अंधा पर्सन है, उसकी दृष्टि, उसकी नज़र वापस से आ सकती है। लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी rendered comfortably by donation of organ like liver। लाइफ ऑफ मैनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबली, बहुत सारे लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाई जा सकता बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, हार्ट वॉल्स, स्किन एक्सेट्रा। इन चीज़ों का डोनेशन करके, हार्ट का, किडनी का, हार्ट वॉल्स का। सिमिलरली ब्लड कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन द मेडिकल स्टडीज़, उसी तरह से बॉडी का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च के लिए भी हो सकता है। मैनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द बॉडी डोनेशन। इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम कर रहे सो दैट क्या है, ये लोग इस तरह से अवेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन एज वेल एज बॉडी डोनेशन में ये क्या है पार्टिसिपेट करें। ऑलवेज रिमेंबर, organ donation and transplantation is under the control of organ donation and transplantation is under the control of Transplantation Human Organ Act 1994। अब अगर हम लोगों को ऑर्गन ये डोनेट और ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो ये इस 1994 का जो ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट है
इसके थ्रू ये कर सकते हैं, इसके लिए ये लॉ बना है। The subsequent amendment of the 2009, 2011 and 2014 so that overall process would be transparent and any person would not be cheated। अब इसके बाद में ये जो 1994 में ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन का जो एक्ट है उसमें 2009, 2011, 2014 में अमेंडमेंट किया गया, उसमें सुधार की गई सो दैट कोई भी पर्सन किसी के ये क्या है जाल में ना फंसे, मतलब वो उसको कोई चीट नहीं कर सके, दैट्स वाई। नाउ सी 8 फिगर 8.4 organ that can be donated। now yes here what is shown, the organ which can be donated, so now see the eyes can be donated, lungs can be donated, liver can be donated, bones can be donated, skin can be donated, kidney, pancreas, heart, etc. all these organs can be donated। Recall a little, what is the biotechnology, in which various field the biotechnology has been used? What is the biotechnology? So now using the microorganism for yes welfare of the human being called biotechnology, and this biotechnology are used in the various fields, for example in medical science, for example in medical science, for example yes agriculture, in dairy, in agriculture, in the industries, food industries, etc. In all these fields, the biotechnology are used. Okay, biotechnology. We have studied the in the earlier classes. We have studied in the earlier classes. The biotechnology is bringing about artificial genetic change and hybridization in organisms for the human welfare। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ये लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया। इज दैट यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी द ब्लड कैन बी yes preserve, the genes of the rare species can be preserved, the seeds of the plants can be preserved। तो हम लोगों ने ये सब लर्न किया। एंड yes there can be change in the genetic material using the genetic engineering to cure the disease or to bring about the desired quality in the plants, means hybrid seeds, in the hybrid seeds the yes desired properties are inserted, for example resistivity towards the disease, or yes growing in the dry region where there are the yes lack of the water। so such type of the changes can be possible is possible because of the biotechnology। Various branches of the science like cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in the biotechnology। इसमें क्या है, ये बहुत सारे जो ये फील्ड्स है जैसे कि साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल आर इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी। देयर इज अ कंसिडरेबल प्रोसेस, देयर इज अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस mainly in the field of agriculture and pharmacy due to the biotechnology। so there is a considerable progress mainly in the field of agriculture and pharmacy due to the biotechnology। new experiments are being performed for improving the agricultural yield। In pharmacy, experiment for the production of antibiotics, vitamins and hormones like insulin has been successful। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ फार्मेसी के फील्ड में करके ही एंटीबॉडीज़ फॉर द डिफरेंट डिजीज, अलग अलग डिजीज अलग अलग बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज, थोड़ा सा बंद करो, अलग अलग बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज, विटामिन्स और हार्मोन्स का फॉर्मेशन सक्सेसफुल हुआ है। हाई क्लास varieties of crop has been developed through the technique of tissue culture। अब हाई क्लास के वैरायटीज के क्रॉप्स डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ द टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से एरिया इंक्लूडेड है? नाउ सी द फर्स्ट वन
use of the various abilities of the microbes like yogurt production from milk and alcohol from the molasses. नाउ अब क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके योगर्ट्स प्रोडक्शन, कर्ड प्रोडक्शन, मिल्क से, अल्कोहल से एंड डिफरेंट टाइप के बीवरेजेस, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स, use of the productivity of the cell, the production of antibiotics and vaccine etc with the help of specific cells। तो नाउ ये स्पेसिफिक सेल्स को यूज करके एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन्स आर कैन बी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, इस तरह से वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। use of the biomolecules like DNA and protein in human welfare, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए का यूज़ और प्रोटीन का यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड यूज़ हम लोग कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके होने वाली बीमारियों को क्योर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से इन चीज़ों का इस्तेमाल ह्यूमन बींग के वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिज़ायर क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशंस, अब जीन को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके एनिमल्स में भी एज वेल एज क्या है ये सब जो फूड क्रॉप्स है उसके अंदर भी हम चेंजेस ला सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, अब ह्यूमन ब्रेन का ग्रोथ का हार्मोन जो है उसके अंदर उसका प्रोडक्शंस कर सकते हैं यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल करके। यूज ऑफ द जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू, जो यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक है उसका भी ये क्या है यूज बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, अब जो नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, सेल और टिश्यू। एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स, तो ये क्या है नॉन जेनेटिक है, इसमें क्या प्रोडक्शन ही है टिश्यू कल्चर और प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, it has become possible to increase per hectare yield irrespective of the limitation of the cropland area. Because of the hybrid seeds and because of the hybrid seed and hybrid seeds are obtained because of the biotechnology, and using this technology the per hectare yield जो पर एकड़ में पैदा होने वाला जो क्रॉप प्लांट है इट इज़ इंक्रीज, तो उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। एक्सपेंसेस ऑन डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड, जो डिजीज कंट्रोल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता था वो कंट्रोल में आ गया इसकी वजह से। एंड सिंस डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट वेराइटीज़, अलग अलग रेजिस्टेंट डिजीज वेराइटी आने की वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटीज़ yield पर एनम हैज़ बीन इंक्रीज, अब जो प्लांट्स है प्लांट्स के अंदर फटाफट जो है फ्रूटिंग लगने की जो टाइम पीरियड है उसको शॉर्ट करके फुल ईयर उनके अंदर फ्रूटिंग लेने की एबिलिटी का भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी, अब ऐसे स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। विच कैन विथ स्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, जो क्या कर सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे क्रॉप प्लांट का ग्रोथ। वाटर स्ट्रेस, जहाँ पे वाटर की कमी है वैसे प्लेस पे भी वो क्या है ये ग्रो हो सके ऐसी वैरायटीज़। चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हैज़ बिकम पॉसिबल, और जो फर्टिलिटी है सॉइल को उसको भी चेंज कर पाना ये भी पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, अब इंडिया में किस तरह का डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हो रहा है, दिस इज गिवन इन दिस पैराग्राफ।
Government of India has established the National Biotechnology Board in 1982. So remember this date, in which year the National Biotechnology Board is established in India. So in 1982. This board was transformed into the developed Department of the Biotechnology. This board was transferred into the Department of the Biotechnology under the Ministry of Science and Technology. अब ये बोर्ड को जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया इन 1986. Various institutes in India are working. Many institutes in India are working under the control of this Department of Biotechnology. Now, yes, those institutes that are related to the biotechnology, they are working under this department. It includes नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी. अब इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट है जो उसके अंडर वर्क करते काम करते फंक्शंस करते वो क्या क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, ये जो इंस्टीट्यूट है वो भी उसी के अंडर काम करता है. नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants. There are facilities of the higher education and research. In these institutes from where thousands of students have pursued PhD degree and are contributing to the progress of country in the field of biotechnology. ये जितने इंस्टीट्यूट के नेम्स यहाँ पे हम लोगों ने रीड किया, इस इंस्टीट्यूट में हजारों जो स्टूडेंट है वो इसका फ़ायदा लेते हैं और वो अपनी खुद की पीएचडी डिग्री रिसर्च कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में जो है हमारे कंट्री के प्रोग्रेस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नाउ ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? कॉमर्स के लिए, मीन्स ए टू इंक्रीज द तो लोग इतना हैवी कहीं गिर गया उससे तो टूट जाएगा कंप्यूटर. तो क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कॉमर्शियल एप्लीकेशन मीन्स क्या है ये? टू इंक्रीज द इकोनॉमी, पैसे को बढ़ाने के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़. तो ये इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्रॉप प्लांट्स को और ज़्यादा इस क्या है एडवांस बनाने के लिए और उसका यील्ड बढ़ाने के लिए किया जाता है. दैट वी विल सी इन दिस सेक्शन. नाउ यस दिस बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर द क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी. Biotechnology is used in the agriculture field to improve yield and variety. अब ये क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी मीन्स द बायोटेक्नोलॉजी विच आर यूज इन द फील्ड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. तो बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वैरायटी. तो इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के फील्ड में यील्ड को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और वैरायटीज़ क्या करना, लाना फूड प्रोडक्ट में, इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग. एंड इसका भी क्या है ये इंक्रीज करना यील्ड एंड वैरायटीज़ फॉर अर्निंग द मनी, पैसे के लिए उसको इस तरह का यूज़ करना. नाउ यस अंडर दैट फर्स्ट पॉइंट अभी हम लोगों ने क्या देखा? कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट की क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी मीन्स ईयर रिलेटेड टू द क्रॉप प्लांट. क्रॉप प्लांट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें ये बायोटेक्नोलॉजी की किस क्रॉप प्लांट के लिए इस्तेमाल हो रही. तो नाउ ये सही है. फिगर नंबर 8.5 देखो, डिफरेंट डिफरेंट द फूड प्रोडक्ट्स आर शोन हियर. यस हियर कॉर्न प्लांट, कॉर्न इज शोन. भुट्टा, भुट्टा दिखा है तो ये हाइब्रिड भुट्टा है. नेक्स्ट वन देखो, यस दिस इज द ओरिजिनल कलर ऑफ द कॉलीफ्लावर, जो ये नेचुरल कलर है. नाउ ये हाइब्रिड वन है. यस जो इस तरह का दिखाई दे रहा ग्रीन कैबेज कॉलीफ्लावर और जो क्या है ये
पर्पल कलर का कॉलीफ्लावर। ये देखो ये क्या है, ये पपैया, ये भी हाइब्रिड वन है। नाउ यस दिस ब्रिंजॉल, बीटी ब्रिंजॉल, ये भी क्या है, ये भी हाइब्रिड वन है। नेक्स्ट क्या है, बीटी कॉटन, और एक यहाँ पे क्या है, राइस है, गोल्डन राइस। तो इन दिस वे यस बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉप प्लांट के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए और उसकी वैरायटीज क्या है ये लाने के लिए। हाइब्रिड सीड्स, genes of the two different crops are recombined to form the hybrid of the various crop. This is especially useful for the fruits. अब देखो दो डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप प्लांट के जीन्स को कंबाइन किया जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों की क्वालिटीज उस फूड प्लांट में, फूड क्रॉप में आ जाती है। दिस इज स्पेशली यूजफुल टू फ्रूट, और ये स्पेशली फ्रूट के लिए यूजफुल होते हैं। बी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, अब जेनेटिकली जो ओरिजिनल क्रॉप है उसके अंदर, उसके जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस लाना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ओके नाउ सी यस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऐसे क्रॉप प्लांट जिसके अंदर मॉडिफिकेशन लाए, उनके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन लाया है। अब जेनेटिक मटेरियल मीन देयर इज ए मॉडिफिकेशन, चेंजेस इन देयर जीन्स, उनके जीन्स में लाया गया है। क्रॉप डेवलप्स विद द डिजायर कैरेक्टर, क्रॉप डेवलप विद डिजायर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जीनोम्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और जो क्रॉप प्लांट्स है उसमें दूसरे प्लांट का जीन्स को इंसर्ट करना ही क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। हाई एल्डिंग वैरायटी विथ रेजिस्टेंट टू डिजीज, हाई एल्डिंग वैरायटी मीन्स ऐसा वैरायटी जो ज़्यादा प्रोडक्शन करे विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज, विथ सॉरी विच विथ रेजिस्टेंट टू डिजीज, और जो क्या हो डिजीज का रेजिस्टेंस करे, मीन्स उसको क्या कर सके, उससे फाइट कर सके। अल्कलिनिटी, वीट, अब जो वीट से स्ट्रेस डेवलप होता है लाइक कोल्ड्स एंड ड्रॉट, ये सबसे लड़ने वाले जो है क्रॉप प्लांट तैयार किए गए हैं उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन करके। मतलब जो भी ओरिजिनल क्रॉप प्लांट था उसके सीड्स में उसको डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी बढ़ाने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट, उसमें कोल्ड को बर्दाश्त कर सके, और जब पानी कम होता है उस टाइम ड्रॉट जो होता है, सूखा, सूखे को बर्दाश्त कर सके, ऐसे क्रॉप प्लांट को ग्रो करने के लिए यस उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन किया गया है। नाउ यस नेक्स्ट वन बीटी कॉटन। अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, बीटी कॉटन। ए जीन्स हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बेसिलस थ्रू एन जेनेसिस। अब एक जीन्स जो है इस बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया, निकाला गया, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, बैक्टीरियम बेसिलस, बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis and integrated with the genome of the cotton। अब इस बैक्टीरिया के जीन्स को निकाल करके और इसको जो कॉटन के सीड्स है उसके जीन्स में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फैटल फॉर द बॉलवर्म was produced in the leaves and ball of the cotton। अब इस बैक्टीरिया जो बैक्टीरियम थ्रूएनजेनेसिस है, ये बैक्टीरिया दूसरे वॉर्म्स के लिए हार्मफुल होता है। उसका जो क्या है, ये जो उसका सिक्रीशन है, उसका जिससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उस बैक्टीरिया का, वो प्रोडक्ट बॉल वॉर्म, बॉल वॉर्म जो है ये वॉर्म से कीड़े हैं जो क्या करते हैं, कॉटन के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बॉल वॉर्म्स को जो कॉटन के पौधों को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे बेसिलस बैक्टीरिया के जीनोम को उस सीड्स के अंदर एंटर किया गया, सो दैट plant itself have the resistivity towards the bollworm। So yes, when the genome of this bacteria is inserted into the genes of the seeds, then the plant which grow that have that toxic material, and when the bollworm try to harm the leaves and fruit of this cotton plant, they are killed। तो क्या होते, वो killed हो जाते, and that's why yes they do not harm, because yes when they try to harm, yes there is already toxin for them in the plant,
तो उनके अंदर पहले से टॉक्सिन्स रहता है. इफ bollworm feed on the leaves, toxin destroy its alimentary canal. अगर बॉलवॉर्म जो इसके लीफ पे डिपेंड रहते फॉर देयर फीड, the toxins which are present already in this plant, they damage the alimentary canal, means the digestive system of that bollworm, and that swarm bollworm dies when it eat the leaf of that is seeds, or sorry, the cotton plant. Now bt brinjal. Bt brinjal variety is developed by using the genes isolated from the bacillus thuringiensis. Now this is similar to the yes Bt cotton. In the Bt cotton, the genes of the bacterium Bacillus thuringiensis is introduced. Similarly, in the brinjals also, the genes of the Bacillus thuringiensis is introduced, and this contain the toxin material. This improved variety of brinjal kills the pest in the same way as it do in the Bt cotton. तो ये जैसा कि बीटी कॉटन में हम लोगों ने देखा, व्हेन द लीफ ऑफ द बीटी कॉटन इज ईटन बाय द बॉलवर्म, तो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन दे आर किल्ड. तो सिमिलरली इन द बीटी ब्रिंजल, व्हेन द insect or pest try to harm the leaves and the fruit of the yes that brinjal, they are killed. तो वो भी क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं. Now yes, unmute yourself, and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. Yes student, tell me, is anybody having any doubts? Yes student, is anybody having any doubts? Okay, now yes, I am ending the meeting.